Kamleshwar, a very important, a very eminent Hindi writer who has in fact written voluminous novels, tremendous number of short stories, collections, 20 other books which are critical, travelogues, collections of essays, etc. Premchand, Yashpal, Amritlal Nagar, Gharana. Kamleshwar declares his affiliation with this, so to speak, Gharana of Hindi literature. Kamleshwar ji has also been a writer for TV serials such as Darpan and Chandrakanta and many others. I believe he has a lot to offer to us, not only on partition experience, but many other themes which are relevant in today's context. But today we are, of course, going to deal with partition and Kamleshwar and the writer's perception of partition. Kamleshwar ji, though you have not really been through partition experience directly, you have been captured by this theme right from the beginning, I would say, except for perhaps your journalistic writing. The major part of your writing seems to be focusing in some way or the other with partition. Is there any personal reason for this? Actually, partition for me has not been only a kind of a geographical partition. Because you see, I saw in my own small town, that Kasba, Manpuri, that how the community got partition, with partition. And because what happened, suddenly we found that there is a kind of a strain in between Hindus and Muslims. No doubt they were still friends. They still used to talk to everybody and each one to each one. But still there was something that warmth evaporated. And that was, I think, the greatest sense of loss to me as to what is happening in between man and man, because he is a Muslim and he is a Hindu. Now that theme remained predominant in my mind. And when I shifted to Allahabad and for my graduation to the university, then began the inflow of the refugees from partition, Punjab and Sindh and these areas. And the trains which came there, we had to receive them as volunteers. And because they were the persons totally devastated. Would you say that, I mean, talking about Mainpuri and Uttar Pradesh, would you say that your novel Laute Hue Musafir, which is not really very much talked about, but considering that it has partition as a very large experience looming behind it, would you relate it to your Mainpuri experience, and how would you, if you can tell us a little bit about the theme? Of course, Sukrita ji, I feel today that at that point of time when I wrote this, around 58 or 57 maybe, that this novel was not actually about partition, but definitely about, not only about partition, but about the reality of partition and the thing which happened in between man and man, and community and community. Thematically, this is a very simple novel, Laute Hue Musafir. What happened, you see, that there was some kind of a propaganda going on in the Kasbah. There was absolutely no jagda, no danga fasad, no riots, no गाली गलौज. वन डे देखा कि दीवार पर, मेरी अपने शहर की सच्चाई थी कि दीवार पर लिखा मिला कि लेके रहेंगे पाकिस्तान. दूसरे दिन देखा उसके सामने वाली दीवार पर लिखा हुआ है पाकिस्तान मुर्दाबाद. नीम के पेड़ पर एक हरा झंडा लग गया, पीपल के पेड़ पर एक भगवा झंडा लग गया. कौन लगाता था पता नहीं चलता था, लेकिन एक जैसे कहना चाहिए कि एक अजीब सा तनाव सा दिखने लगा कि अब लोग उतनी उनसियत से, उतने प्यार से एक दूसरे को दुआ सलाम करते हुए नहीं निकलते हैं, बल्कि अगर पड़ गए आँख के सामने तो दुआ सलाम हो गया. जी. तो एक जगह थी स्टेशन के पास, मैनपुरी स्टेशन के पास, जहाँ पर कि ये बस्ती खासतौर से मुसलमानों की बस्ती थी. रातों रात ये लोग निकल गए वो छोड़ के, क्योंकि कुछ लोगों ने उनसे ये कहा था कि आप अलीगढ़ आ जाइए तो आपको वहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए ट्रेन मिलेगी और उससे हम ले चलेंगे आपको. ये जंक्शन स्टेशन अलीगढ़ से पहले वहाँ पहुँचे, फिर आगे पहुँचे, इन्हें कोई लेने वाला नहीं आया, कोई मिला ही नहीं.
अब ये लौट के नहीं आ सकते थे क्योंकि रातों रात निकल गए थे, तो शर्म के मारे दे कुडंट कम बैक टू द टाउन। तो ये सब लोग वहीं आसपास के जिलों में बिखर गए। और हुआ क्या कि ये अपने पेशों से उखड़ गए। जो घड़ी साज थे हमारे, एक बड़े सैयद कहते थे उनको, सैयद साहब, बड़े अच्छे घड़ी साज थे, वो घोड़े के नाल लगाने के लिए मजबूर हो गए। यानी पेशे बदल गए, स्टेटस बदल गया। तो मुझे लगा कि ये बड़ा अजीब सी एक स्थिति थी। इस पर मैंने लिखा। एक जब मतलब विकास का काम, डेवलपमेंट का शुरू हुआ, तो एक ट्यूबवेल डिवीजन हमारे यहाँ खुला करीब 10-11 साल के बाद। तो मजदूरों की जरूरत हुई, तो उनकी भर्ती के लिए पता लगा आसपास जिलों में। हालांकि उनकी खबरें आती रहती थी मेले तमाशे में, एग्जीबिशन में। जो लोग तांगे वाले आते थे वो खबरें ले आते थे कि भाई वो मुन्नन का जो मामू था वो वहां पर है ना। तो एक तो अपने सारे पेशे बदल गए। 10-11 साल के बाद जब भर्ती शुरू हुई इन लोगों की, तो कुछ नौजवान मजदूर वहां भर्ती के लिए आते। पता लगा कि उनके पास वो कहानियां थी जो उनके घर वालों ने बताई थी कि अपना घर, वतन, मुल्क सब वही है जो हम छोड़ के चले आए, है ना। बेटे घर तुम्हारे वहीं। और वो लोग आते हैं, मजदूरों की तरह काम करते हैं। और उसके बाद वहां पर एक औरत रह गई है, नसीबन है वो नहीं गई थी। वो फिर पहचानती है कि अच्छा तुम फुन्नन मियाँ के बेटे हो। कहता जी हाँ मैं हूँ। कहती तुम्हारा घर बेटे वहां था। हालांकि घर नहीं रह गया, जमीन पड़ी है, देहरी रह गई है, एक टाट का टूटा हुआ पर्दा पड़ा हुआ, लेकिन उसे सब मालूम है वहां का भूगोल, ज्योग्राफी। इस तरह से वो मुसाफिर लौट गया। Kamleshwar's writing career projects the haunt of the partition of the Indian subcontinent. Centuries get old, but pain does not, says Kamleshwar, and he keeps going back to that pain in his fiction, from his short story Kitne Pakistan to the novel Kitne Pakistan, written decades later at the end of the 20th century. This Kitne Pakistan was something again where I felt that the compositeness of the society, I won't say culture because that's become a cliche, the compositeness of the society, the community where we used to live, got totally disintegrated. I do remember there was a drill master in that Kitne Pakistan short story who was writing a Bhartari Nama. He was writing a Bhartari Nama. And something so happened that because of there was a small kind of a romance in between a Hindu boy and a Muslim girl, and they were deeply in love with each other. So the community, you see, the community, not the community actually, but certain people of the community who felt more Muslim than a Muslim, or a Hindu who felt more Hindu than a Hindu, they began, you see, interpreting things in their own manner. And there I found that whereas the drill master, who is a Muslim, writing Bhartari Nama in Urdu, and yet he is not able to keep that culture which he wanted to carry with him and to give it to the next generation. And therefore, the whole of the family had to migrate to other states. Reminds me of Ashfaq Ahmed's Gadaria. उसी के साथ जुड़ता हुआ एक एक्सपीरियंस है और बहुत उम्दा तरीके से आया। अब कैसे कोई लेखक भूल सकता है? उसका नाम अशफाक अहमद भी हो सकता है और उसका नाम कमलेश्वर भी हो सकता है। कहीं समवेयर कहीं न कहीं लगता है सुकृता जी कि ये जो मतलब वो जो बहुत ज्यादा तकलीफ जो हुई है ये सबके पास है ना, किसी न किसी शक्ल में ये मौजूद है। और ये मतलब पाकिस्तान एज ए ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, ये जो मतलब डिसरप्शन हुआ है भीतर, है ना, जिसमें एक पूरी कल्चर जो कि सिविलाइजेशन में बदलने जा रही थी, है ना, वो कहीं मतलब रुकी रह गई। तो मुझे लगता है कि यानी इससे ज्यादा नुकसान ह्यूमैनिटी का या मतलब किसी भी कम्युनिटी का हो ही नहीं सकता। इंडिया को मैं कम्युनिटी मान के चलता हूँ। तो उस रूप में अब मतलब ये कि जो नेशनलिज्म की जो परिभाषाएं, डेफिनेशंस आ रही हैं, उनमें वहाँ पर लोग दूसरी तरह सोचते हैं, यहाँ दूसरी तरह सोचते हैं, और जो फंडामेंटलिस्ट है वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं।
Kamleshwar is himself like his mythical character Gilgamesh, who seeks to conquer death, while at the same time the narrative deals ironically with a continuous story of partitions in the history of mankind. Partitions through the ages, partitions all over the world. Partition 1947 becomes merely a takeoff point to come to understanding of the continuum. Definitely I have derived my styles from them, not the theme. And when I go and I try to dissect the various cultures and the streams of cultures and civilizations, I find that this has been the pervading theme all through all civilizations, which every civilization, the coming in civilization, always tried to store, but they could not succeed. So for me, this Pakistan becomes only a metaphor. And that way I feel that this tendency of dissecting people on the basis of religion, on the basis of fundamentalism, on the basis of superior race, this finally leads to the total devastation of the soul of man. उसकी आत्मा को तोड़ देती है चीजें। 2-4 दिन वो बड़ा अच्छा महसूस करता है। तो मुझे लगा कि इसमें से निकलते हुए इस कितने पाकिस्तान उपन्यास में कि अगर हम और कुछ ना कर सकें तो हम आदमी को सिर्फ इतनी राहत दे सकें कि ये चीज़ें गलत हैं, शायद ये सही नहीं है। इतिहास, हिस्ट्री हमें ये बताती है। और उसी तरह का मतलब दूसरी तरह के पार्टीशंस जो होते रहे हैं, चाहे वो बोस्निया में हो, युगोस्लाविया में हो, या अफ्रीका में हो, या वियतनाम में हो, कंबोडिया में हो, तो ये सब सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मनुष्य के दे गो अगेंस्ट मैन ऑफ हिज ओन टाइम। और ये टाइम की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये है कि टाइम में ही इनसे लड़ा भी जा सकता है, इनसे समझा भी जा सकता है, और अपने भीतर जो कैथारसिस होती है ना, उस कैथारसिस के नाते वो जितना हमें समझदार बनाता है, शायद हम अपने शब्दों से समझदार तो नहीं बना सकते लोगों को, लेकिन अगर हम उस यात्रा को, उस तकलीफ को अगर हम लोगों तक पहुंचा दें तो उनके मन में भी वो चीज़ें जागती। जी, Kamleshwar ji, you have spearheaded the movement of the new story with your colleagues like Mohan Rakesh and Rajendra Yadav. And I always wonder, I mean, with the coming in of this new sensibility, do you think that the backdrop of partition played a very significant role in evolving this sensibility of the new story? Of course, बहुत जुड़ा हुआ है। सही पूछे तो चाहे नई कहानी को उस दौर में, हालांकि आप सोचिए अगर उस समय का, तो कृष्णा सोप्ती की कहानियां भी उसी दौर की कहानियां, भीष्म साहनी की कहानियां भी उसी दौर की कहानियां हैं, राम कुमार आर्टिस्ट जो हैं हमारे, निर्मल वर्मा की कहानियां उसी दौर की कहानियां हैं। इनमें एक अजीब किस्म का, जैसे कहना चाहिए कि एक इको है, पार्टीशन नहीं है, लेकिन वो बगैर पार्टीशन के ये कहानियां बनती ही नहीं, क्योंकि ये देखिए कि एक जो जिसे कहते हैं विस्थापन, हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है, अपरूटेड, है ना। तो ये जो मतलब हमारे यहाँ उस समय का एक एलिनेशन जो आया था, वो वेस्ट में तो आया एग्जिस्टेंशलिज्म से, हमारे यहाँ जो ये विस्थापन आया और मतलब ये जो एलिनेशन आया, ये एलिनेशन हमारे और आपके बीच नहीं था, लेकिन हमारे आपके और तीसरे और चौथे के बीच का था जो चले गए। तो मुझे लगता है कि सारी नई कहानी के मूवमेंट में, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास की कहानी हो या मिडिल क्लास के कैरेक्टर्स की कहानियां हों या बिल्कुल एकदम यानी संघर्षशील आम आदमी की कहानियां हों, लेकिन इनके भीतर वो जो एक इनर फीलिंग आती है कहीं ना कहीं कि घर में ही आदमी अपने को पराया पाने लगता है ना। वो जो परायापन की फीलिंग, व्हाट इज दैट, वो भी तो है, तो वही। तो इसलिए डायरेक्टली अगर हम पार्टीशन से, विभाजन से इसको रिलेट ना भी करें तो भी कहीं ना कहीं ये एक जिसको कहते हैं कि पार्टीशन का सताया हुआ मन, दिमाग, दिल, है ना, ये कहानियां निश्चित रूप से नई कहानी की मूवमेंट की कहानियां उसी। Kamleshwar's stories
Kasbe Ka Aadmi and Raja Nirbansiya created ripples in the world of Hindi fiction, thus expanding the very scope of the story. They provide poignant glimpses into Kasbai life, depicting small episodes, dusty and broken roads, images of hungry and naked children in dark gullies. Kamleshwar emerged as one of the major writers in 1960s who brought in fresh perspectives into the new story in Hindi. Steering the Nai Kahani movement in Hindi, Kamleshwar stepped into both the film and the television media with his vision of progressive thought and innovative mind. Carrying within himself the rich linguistic legacy of both Hindi and Urdu, Kamleshwar's language is people's language that is accessible. It reveals what is called the Ganga Jamuni streams in which rests the warmth of a composite culture, not excessively Sanskritized nor overly Persianized, a Hindustani that assimilates, a language that harmonizes. What do you think partition did to Urdu and to Hindi, and what do you think is the relationship now between Hindi and Urdu? पार्टीशन के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, कहा यह जाता है कि उर्दू को हुआ, लेकिन मैं ये कहूँगा सुकृता जी कि पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा नुकसान हिंदी को हुआ। उसकी वजह यह है कि उर्दू को एकाएक पार्टीशन की लैंग्वेज मान लिया गया और उसकी वजह से वो जो तासुबी यानी लोग थे, उन्होंने हिंदी की उसकी जो जैसे कहना चाहिए कि नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है हिंदी की, उसके बरक्स यानी किताबी हिंदी को लाना शुरू किया और किताबी हिंदी की वजह से उसका संबंध हमारे मतलब रीडरशिप से, कॉमन मैन से कटता चला गया। वो सरकारी दफ्तरों की हिंदी बन के रह गई। उर्दू के चलते मुझे लगता है कि हिंदी इतनी रवा दवा तरीके से बढ़ रही थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उसी तरह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी उर्दू को जिंदा रखने का काम हिंदुस्तान ने ही किया। अगर हमने इस अपनी ज़बान को या हमारे अवाम ने इस ज़बान को अपने साथ ना रखा होता तो आज पाकिस्तान में उर्दू कैसे और क्यों पनपती, क्योंकि वहाँ तो वो किसी स्टेट की लैंग्वेज नहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा ये जिक्र करने के लिए कि मैं जब एक बार पाकिस्तान गया था तो वहाँ के उस समय के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब से एक इंटरव्यू ग्रांट हुआ था मुझे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था इन व्हाट लैंग्वेज यू आर गोइंग टू टॉक टू मी। आई सेड माय ओन लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज द लैंग्वेज, मैंने कहा उर्दू। तो हल्के से मुस्कुराए, उनकी सुरमा लगी आंखों में भी थोड़ी सी, तो कहने लगे उर्दू, हाउ कम इट्स योर लैंग्वेज। आई सेड हुजूर ये ज़बान तो हमारी है, आप तो सिर्फ पाकिस्तान में उठा लाए हैं। तो मुझे लगता है कि उर्दू के मतलब उर्दू की एक कमी जो आई है पार्टीशन के बाद, उर्दू का सुनाई देना बंद हुआ। आज भी जब आप उर्दू सुन रहे हैं तो आपको लगता है जैसे ये मतलब पाकिस्तानी ज़बान, लेकिन हिंदुस्तान के उर्दू लेखकों ने उसे जिस तरह से जोड़ दिया है साथ में, मुझे लगता है कि ये रिश्ता हिंदी और उर्दू का बहुत गहरा है। मैंने दो इंडिपेंडेंट ज़बानें मानता हूँ। ये सब कहना कि ये बहनें हैं, सगी बहनें हैं, ये मतलब बेकार की बात है। दो ज़बानें हैं लेकिन एक ही आदमी की दो ज़बानें। When Kamleshwar says memories are not Muslim or Hindu, he projects his secular vision, his vision that perceives men and women as human beings who feel, human beings who suffer, who are oppressed as individuals and are not merely lying, bundled or shackled in categories that evoke biases and prejudices. Kamleshwar's fiction compels the reader to face the ruptures and evolve connections. In confronting the divisions, he highlights their absurdity. What do you think is happening to the Indian Muslim in the Hindi story? In the Hindi story, मुझे ये लगता है कि that there has been a kind of neglect
about the Indian Muslims. Characters are not coming there. Their situations are not being discussed. It is only because of that vacuum which was created immediately after partition that the interaction in between communities and in between the friends of different communities that almost stopped for some time. So the experience became very less, very small. उसकी वजह से जो हिंदी राइटर था वो उतने उससे नहीं लिख पाया। लेकिन उसके साथ आप देखिए कि हिंदी में, यानी अब आप ये देखिए कि जिन्हें उर्दू कहना चाहिए, इसको मैं ये नहीं मानता कि उर्दू मुसलमानों की जुबान थी। उसके बाद हमारे यहाँ बदिउज़्ज़मा साहब ने जो लिखा सभा पर, छाकों की वापसी, शानी ने लिखा काला जल, राही ने लिखा आधा गांव, टोपी शुक्ला, है ना, और इसके साथ साथ काजी अब्दुल सत्तार ने लिखा दारा शिको। तो मुझे ये लगता है कि और हैं तमाम चीज़ें, इतनी बड़ी चीज़ें हैं जिसका कि लेकिन तो उनसे बड़े हमारे पास जैसे कह रहे थे ऑथेंटिक कैरेक्टर्स भी आए, सिचुएशंस भी आई, और अब जो लेना देना बढ़ा है आपस में, और अब मतलब उस तरह की चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी हैं जिस वैक्यूम से निकल के हिंदी राइटर आया था। तो अब मतलब आप देखें इधर के जो नए राइटर्स हैं हमारे, उनके उसमें कैरेक्टर्स चाहे वो मुसलमान हो कोई भी हो उसी तरह आते हैं जैसे और कोई आता है। खास तौर से मुसलमानों पर कहानी लिखने की अब ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग प्रेजेंट जनरेशन के कहते हैं कि ये जो जिस जनरेशन ने एक्सपीरियंस किया पार्टीशन को और जो प्री पार्टीशन डेज को नॉस्टैल्जिकली याद करते रहते हैं, नाउ इट इज़ इररेलेवेंट, वी नीड टू मूव ऑन, वी वांट टू पुट दैट बिहाइंड अस। How would you look at the new generation which is emerging and saying all these things? मुझे लगता है कि they only want to deny the partition which happened in 1947, but the partition which has happened, and which has somewhere destroyed our total personality, and disrupted our mental ethos. That we have to reminiscence about it in order to create a new better world where we should not suffer from this kind of a emotional trauma. That's my feeling. नई जनरेशन ठीक है, उनके दिमाग में ये नहीं है क्योंकि उनके सामने से ये गुजरा नहीं, लेकिन वो इस तकलीफ को उन्हें झेलना पड़ेगा, समझेंगे जब वो और ज़्यादा गहरे में जाके लिखेंगे, है ना। और जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इस पोस्ट मॉडर्निज्म में चूँकि बाज़ारवादी ताकतें बहुत आ गई हैं, तो इसलिए मतलब एक दूसरी तरह की दुनिया क्रिएट हुई है जिसमें हमें बड़े रंगीन रुमाल और स्कार्फ्स दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसके भीतर सवाल यह है कि उनको बांधने के लिए, रखने के लिए एक जेब भी चाहिए आपको, और बांधने के लिए एक गर्दन भी चाहिए, नहीं कि बांधेंगे कहाँ। तो ये फेस्टून्स, मतलब जिसमें से आप ये कहते हैं कि आप भूल गए हैं, मुझे लगता है कि भुलाया जा सकता है, लेकिन फिर पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, लेकिन एक इंटरनलाइज्ड तरीके से ये तभी भूला जा सकता है जब कहीं ना कहीं और कुछ ना हो, दोनों मुल्क बने रहें, लेकिन कम से कम मिलने जुलने की आज़ादी तो हो। Commissioner, there is a danger of one kind which I conceive of, rather perceive, in the context of partition being kind of becoming equivalent to Pakistan in the title. Now the fact of the matter is that Pakistan has come to be. It is 50 years old. It has its own identity. How do you think you can sort of dissociate, or rather, how do you think we can preserve the dignity of the nation called Pakistan? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी नेशन की डिग्निटी और उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज को हमें बराबर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन मुश्किल क्या होता है कि जो सरकारें उधर बनती हैं, जो सरकारें इधर बनती हैं सरहद के इस पार, उनमें मतलब उनके सवाल वही हैं, सरहदों के सवाल हैं, सरकारों के सवाल हैं, पिछली दुश्मनियों के सवाल, और वो दुश्मनियां हिस्ट्री में तलाशी जा रही हैं, है ना। ऑल मेडिवल पीरियड जो है हिस्ट्री का, उसमें तलाशी जा रही है। जबकि मुझे लगता है कि अवाम और अवाम के बीच में
किसी भी तरह की कोई सरहद नहीं है। ये एक्स्ट्रा नेशनलिज्म, ये जो राष्ट्रवाद जिसे कहा जा रहा है, ये एक्स्ट्रा नेशनलिज्म है जो कि मतलब इन अंगारों को जलते रहने देता है और हवा देता रहता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारी कहानियां, एक कहानी मंटो की तोबा टेक सिंह, इतनी कहानियां हैं, भाई जोगिंदर पाल की कहानियां हैं, अशफाक हुसैन की कहानियां हैं, किसकी कहानियां, किसका, इंतजार हुसैन की कहानियां अगर आप लीजिए, मुझे तो लगता है कि अगर पाकिस्तान से इंतजार हुसैन की कहानियां लिखी जा सकती हैं तो इससे बड़ी हिंदुस्तानी कहानी क्या हो सकती है। ज्यादातर लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं दोनों मुल्कों की तरफ से कि हमें भी मतलब एक एक्स्ट्रा नेशनलिज्म हमारा होता है लड़ाई के दौरान, उनका एक एक्स्ट्रा नेशनलिज्म होता है। हुआ ये था कि उस समय 1965 वॉर हुई थी, इंडो पाक वॉर। तो उस वक्त इस वार प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान की तरफ से फैज साहब देख रहे थे। उसमें जो भी था यानी उसको कहीं ना कहीं वो संभाल भी रहे थे कि ऐसा न हो कि बदतमीजियां हो जाए इसमें। और मैं बहुत ही मतलब विनम्रता से याद करता हूँ, तो हिंदुस्तान की तरफ से मैं मतलब देख रहा था, जो कुछ रेडियो पर जाता था, जो कुछ दूसरी जगह जाता था, तो उनमें से मतलब मैं इधर से देखता था। फैज साहब को भी ये मालूम था कि शायद इधर से एक कमलेश्वर नाम का कोई हिंदी का राइटर है जी। वो कुछ कर रहा था इस तरह की हरकतें, और मुझे पता था कि उधर से फैज साहब कुछ कह रहे हैं। मेरे लिए तो बड़े थे वो। खैर कई बरस और गुजर गए, 1965 की वॉर खत्म हो गई, ताशकंद समझौता हो गया, तो एक बार फिर वो कई बरस बाद बम्बई आए। आप यानी मुझे खुद में भर गया, आंसू आ गए मेरे, जब किसी ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि भाई फैज साहब आए हुए हैं। अखबारों में मैंने पढ़ा था और मैं छटपटा रहा था कि मैं फैज साहब से कैसे मिलूं, है ना। उन्होंने कहा कि फैज साहब आपका नाम ले रहे थे और कहते हैं कोई कमलेश्वर साहब हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वहाँ जब हम मिले हैं सुकृता जी, तो ना तो कहीं 1965 की वॉर थी, ना प्रोपेगेंडा था, ना एक्स्ट्रा नेशनलिज्म था, है ना। हम दोनों ऐसे मिल रहे थे जैसे हमें तो मिलना ही चाहिए था। कमलेश्वर जी, आपने पार्टीशन पर बहुत लिखा, एक के बाद एक नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, और a kind of partition seems to have become a haunt for you. Again, interestingly, what I also notice is that the way you connect up partitions, one kind of partition with another kind, it becomes a narrative of human history. Do you think you have done with partition? Do you think that you are still restless about it? Restless, instead of using this word, perhaps I feel very morose, very sad about the whole thing. क्योंकि जो कुछ सदियों में होता रहा, उसके साथ साथ अभी भी जो जैसे कि वेस्ट की एक रियलिटी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें से कि हमारे अस्तित्व के लिए ख़तरा था, अजनबीपन था, परायापन था। मुझे लगा कि हमारे अपने एक्सपीरियंस का, भारतीय लेखक के एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो उस यानी बिखराव का है, जो वो भीतर से बिखर गया इस पार्टीशन की वजह से। This has been beautiful, Kamleshwar ji. I think the way modernism comes together with progressivism in your writing, I think that in itself becomes a utopia realized. Thank you very much. बहुत बहुत आपका धन्यवाद।